औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? होप डूइंग वेल विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड आई एम सो सॉरी, I think after a long time I'm just uploading this video. I mean the next video. Previous videos you saw the fine basics of Arabic language for the non-Arabic students. Inshallah, today I'm going to discuss about the difference between the Arabic language and generally English language. ज़्यादा फ़र्क in the sense every language has its own style, but alhamdulillah Arabic language being the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala is a unique, and it's a very sweet language indeed, and it's a very easy language. We being non-Arabs, not having the awareness of greatness of Arabic language, we think it's very hard and it's very typical language. Even the pronunciation, we think it's very difficult. Not at all. Inshallah, we'll learn at least the basics of Arabic language through which we can understand the Quran, inshallah. Generally देखिए, उर्दू में in Arabic language words are derived from the root letters. Letters are nothing but the alphabets. Okay. अब आप लोग सोच सकते हैं how can the words be derived from the alphabets. Generally, for example, in English, if you have any 3 letters or 4 letters A, B, C, D or G, H, K, L, you cannot make any word. With A, B, C, D, can you make any word? Or with G, H, K, L, can you make any word? You cannot make. If I tell BAG, then you'll be able to understand that BAG, bag, it mean a bag. CAT, cat. Okay. And that's all. These words further doesn't give any meaning. For example, BAG, bag, that's all, bag. CAT, cat, DOG, dog, that's all. It doesn't give any further meaning. But whereas in Arabic language, the words are derived from the letters, and a word just by adding a text, adding a letter at the beginning or at the end, gives further meanings. Okay, for example, say if I take any 3 letters, kaf, ta, ba, and you can think that any 3 letters in the sequence or randomly, sometimes if I take any 3 letters in sequence also, it can make a word. Not most letters will make a word, but most of the letters can make a word. For example, if I take kaf, ta, ba, ka, ta, ba, okay, these are the harf and huruf letters. Harf means letter, huruf letters. I can make different words just with 3 letters. For example, ka, ta, ba, root letter meaning is there, and according to the text, sometimes the synonym may become opposite also. For example, according to the context, inshallah you don't worry about that. आगे जाके हम इंशाल्लाह बहुत easily सीखेंगे. वो अभी दिमाग से निकाल दीजिए. जस्ट आप लोग इतना याद रख लीजिए कि रूट लेटर का एक मीनिंग होता है, उससे जो भी लेटर्स से डिराइव होते हैं मीनिंग थोड़ा थोड़ा सा बदलते जाता है. समटाइम्स टेंस चेंजेस, इंशाल्लाह देखेंगे. अब देखिए काफ ताबा, काफ ताबा इज़ द रूट लेटर. ओके, काफ ताबा का रूट लेटर का मीनिंग है, रूट वर्ड का मीनिंग है टू राइट. ओके, अब इससे बुक भी बना सकते हैं, मीनिंग देता है ये. एंड ही इज़ राइटिंग, दे राइट, दे रोट, ये सब वर्ड्स मीनिंग्स निकल सकते हैं. कैसे? काफ ताबा, इफ़ आई राइट किताबुन, इट गिव्स द मीनिंग बुक, नाउन. ओके, किताबुन, सेम रूट लेटर्स काफ ताबा से क्या बन रहा? किताबुन. वही फिर मैं काफ के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर ज़बर, बा के ऊपर ज़बर, कतबा लिखी, उसका मीनिंग होता ही रोट. ओके, अगर मैं वो सब BO के बुक या WRIT राइट से मैं इस तरह कुछ राइट से बुक बन सकता है, मीनिंग नहीं बन सकता. बट यहाँ पे काफ ताबा उसका रूट वर्ड का मीनिंग है टू राइट. उसी से किताब नाउन भी बनता है, उसी से टेंस वर्ब भी बन सकता है. ओके, और उसी वर्ब को थोड़ा सा हरकत बदलाने से टेंस बदलता है. काफ ता बा, कतबा, ही रोट. कतबू, वही मैं फिर वाव अलिफ अगर एंड में लगाई, मैं क्या बोली, एंड में कुछ लगाने से भी फिर मीनिंग दे रोट होता है, प्लूरल हो जाता है. वही फिर मैं सामने अलिफ लगा के उक्तुब हो तो फिर इम्परेटिव फॉर्म यानी कमांड, राइट.
इंपरेटिव फॉर्म होता है, राइट, आई मीन टू गिव ऑर्डर, राइट, इस तरह लिखो। वही इंग्लिश में हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर वही में सामने या लगाए तो यक्तुबु ही इज़ राइटिंग और ही विल राइट, तक्तुबु यू आर राइटिंग, कतबतु आई रोट, इस तरह होता है। तो बस मैं इस वीडियो में यही समझाना चाह रही कि अरबिक वर्ड्स जो है सो लेटर्स में से डिराइव होते हैं। ईच वर्ड इधर कंसिस्ट ऑफ ए 3 लेटर रूट लेटर्स और ट्राइलिटरल बोलते हैं उसको, या फिर कभी कभी 4 भी होते हैं। तो लिटरल मीनिंग एक होता है उस रूट वर्ड का, और उस वर्ड्स अब उस लेटर्स से जो हम डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, नाउन भी बना सकते हैं, वर्ब भी बना सकते हैं, बस स्लाइटली थोड़ा हरकत बदलाना पड़ता है या सामने कुछ लेटर ऐड करना पड़ता है। अब वो कौन से लेटर्स ऐड करने से क्या मतलब देता है, एंड में क्या रहे तो क्या मतलब देता है, बिगनिंग में क्या रहे तो क्या मतलब देता है, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल बी टीचिंग दैट, इंशाल्लाह, डोंट वरी एट ऑल। आज आप लोग रूट लेटर्स क्या है, वर्ड क्या है, डिफरेंस क्या है, बस इतना हम लोग सीखे हैं इंशाल्लाह। और डायरेक्ट आई जंप इनटू द सेंटेंसेस एंड आई डोंट वांट टू डू ए लॉन्ग लेंथी वीडियो। सो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है जस्ट कुरान की एक आयत लेंगे, उसमें से ही रूट लेटर्स लेके वर्ड कैसे बदलता है देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Share it with others, and I'm so thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that we are learning Quran inshallah.